Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrad Scat by Top Rankers. So today we will be continuing with the series which we have done with two parts. First part we discussed कि Venn diagram क्या होता है, कैसे solve करते हैं. In the second part we have discussed with more complex situation जब four sets होते हैं, चार set होते हैं, कैसे deal करते हैं. We have also understood कि भाई Venn diagram कब बनेगा और कब नहीं बनेगा ये भी हम बहुत clear cut समझ चुके हैं. उसके बाद वी हैव आल्सो सॉल्व्ड अ सिचुएशन जहां पे हमें लग रहा था कि भाई छह वेरिएबल है बट वेन डायग्राम तीन वाला बन गया. क्यों? क्योंकि रूल्स ऑफ वेन डायग्राम फॉलो कर रहा था. तो विथ ऑल दीज निटिग्रिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग टुडे वी विल बी डीलिंग विद द सेट्स जहां पे हमें नई रिलेशनशिप्स पता चलेंगी कि वेरिएबल अंदर इंटरनली कैसे रिलेटेड होते हैं. एंड for the students who have not watched the previous sessions, please go and watch them क्योंकि उसके बिना आज के सेशन में फिर आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगेंगी, आपको लगेगा यार समझ नहीं आ रहा है. तो फॉर देम प्लीज गो ब्रश अप योर बेसिक्स इन दोज टू सेशंस. दोज आर वेरी बेसिक सेशंस एंड विद दैट अंडरस्टैंडिंग देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई हम कैसे मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई करते हैं, कैसे इंटरनल रिलेशनशिप होती है अलग अलग वेरिएबल्स में, वो सारी चीजों से हम डील कर पाएंगे. Okay. So with understanding of the Venn diagrams and how Venn diagram and when the Venn diagram will be formed, let's go to a set and understand कि जब limited information दी हो, कम information दी हो, तब कैसे we have to cope up with the information and find out the relevant information or the data asked in the question. उस पे directly कैसे जाएंगे? So let's read this question. Minku serve three beverages, juices, shakes, and jamun shots. So जिनको जामुन शॉट्स थोड़ा सा नया लग रहा है, come to Indore. Here you will have jamun shots. Okay. Now each customer order at least one drink. Each customer order at least one drink, and the following is the information about a particular day. The following is the information about a particular day. The number of customers who ordered juices is 50% more than the number of customers who ordered shakes, which in turn is 50 more than the number of customers who ordered jamun shots. The ratio of number of customers who ordered all the three beverages to those who ordered any combination of two beverages to those who ordered only one of them is 2 is to 3 is to 15. बस दो ही इंफॉर्मेशन दे रखी है. भाई कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे पास तो आठ वेरिएबल है क्योंकि तीन वाला वेन डायग्राम है. जूसेस, शेक्स एंड शॉट्स. अ टोटल ऑफ 1000 कस्टमर, ये तो कैपिटल यू की वैल्यू दे रखी है, तो बाकी सबसे कैसे डील करेंगे? तो लेट्स प्रोसीड विद द वेन डायग्राम. डायग्राम बना के देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. So this is the information which we have already read. Let's fill this Venn diagram. तीन वाला Venn diagram बनेगा, ये हमें clue मिल गया था. So this is juices. Juices. This is shakes. And this is jamun shots. We can write it as JSH. Now, how many variables will be there? तीन वाले Venn diagram में there will be 8 variables. A, B, C, P, Q, R, and O. And this will be none. Now, what they have mentioned, each customer orders at least one drink. At least one जैसे ही बोल दिया, ये क्या हो जाएगा? Zero. जैसे ही इन्होंने एटलीस्ट वन बोल दिया, बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा? जीरो. उसके आगे किस चीज की बात कर रहे हैं? द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड जूसेस इज 50% मोर देन दोज हु ऑर्डर्ड shakes, which in turn is 50 more than the number of customers who ordered jamun shots. So let the jamun shots be equal to 100x. And the number of person who order shakes is 50 more than 100x. So shakes is equal to 100x plus 50. 100x plus
50. Let's write it here. And the number of customers who ordered juices is 50% more than shakes. इससे 50% ज्यादा है. अगर इससे 50% ज्यादा है तो 100 से 50% ज्यादा क्या बनता है? 150x. और 50 का 50% ज्यादा कितना होता है? 75. So one information is given in terms of total values 150x plus 75, 100x plus 50, and then 100x. Got it or not? क्लियर है? तो एक इंफॉर्मेशन तो ये दे रखी है. दूसरी, the ratio of number of customers who ordered all the three beverages to those who ordered any combination of two. All the three beverages means they are talking about exactly three is to any combination of two means exactly two is to ordered only one of them मतलब exactly one का रेशो 2:3:15 दे रखा है. तो क्या मैं ए यूनियन बी यूनियन सी की इक्वेशन बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं. क्या बनाऊंगा? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री. सर आपको कहां से पता चला कि एग्जैक्टली की इक्वेशन? भाई इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली के फॉर्म में दे रखी है तो मुझे पता चल गया कि एग्जैक्टली वाली इंफॉर्मेशन है तो एग्जैक्टली वाली इक्वेशन बनेगी. क्योंकि मुझे ये पता है और इन तीनों के रेशियोज पता है. अगर मैं रेशियोज रख दूं तो इट कम्स आउट टू बी 2a प्लस 3a प्लस 15a इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज 1000 ऑलरेडी गिवन. टोटल कितने कस्टमर्स आए? 1000. So 2 plus 3 is 5, 5 plus 15 is 20. 20a is equal to 1000 which implies a is equal to 50. अगर a 50 है तो exactly 3 कितना हो जाएगा? 2a. 2a मतलब 50 into 2 is 100. Exactly 1 कितना हो जाएगा? तो exactly 1 हम यहाँ लिख सकते हैं. Exactly 1 मतलब 15a. 15 into 50 is what? 750. तो ये 750 हो जाएगा. एग्जैक्टली 2 कितना हो जाएगा? दैट इज 3a. 3a का मतलब 3 into 50 विच कम्स आउट टू बी 150. एंड एग्जैक्टली 3 कितना हो रहा है? 100. तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू अपने पास आ गई. अब क्या मैं इसको निकाल सकता हूं जूसेस की टोटल वैल्यू? क्या मैं शेक्स की टोटल वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या मैं जामुन शॉट्स की टोटल वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल. कैसे निकालूंगा? हाउ डू आई कैलकुलेट? मेरे पास एक और इक्वेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस इक्वेशन. क्या इक्वेशन होती है वो फॉर्म कर लेते हैं. क्या इक्वेशन होती है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एग्जैक्टली वन एक बारी, एग्जैक्टली टू दो बार और एग्जैक्टली थ्री तीन बार. क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं. ये सारे के सारे अननोन है पर सबके सब एक ही वेरिएबल में. कौन सा वेरिएबल है? एक्स. जामुन शॉट्स 100x, शेक्स 100x plus 50 एंड जूसेस 150x plus 75. अच्छा, एग्जैक्टली 1 की वैल्यू 750, एग्जैक्टली 2 की वैल्यू 150, एग्जैक्टली 3 की वैल्यू 100. तो क्या मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं. क्या बनेगा? 150x plus 75, दिस इज योर a, प्लस 100x plus 50, this is your b, plus 100x is equal to exactly 1 एक बार तो कितना आएगा? 750 प्लस exactly 2 दो बार, exactly 2 दो बार तो 150 into 2 300 प्लस exactly 3 तीन बार तो 100 into 3 300. 300 plus 300 600, 600 plus 750 is 1350 और इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? तो जूसेस कितना था? 150x plus 75. तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 plus 100x is 250 plus 100x is 350x. तो 350x plus 75 plus 50 is 125 is equal to 1350. तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1350 में से 125 जाएगा तो बचेगा 1125 एंड दिस इज 350x. सो x कम्स आउट टू बी 35 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, ये 35 से कैंसिल होगा 35 टाइम्स तो x कम्स आउट टू बी 3.5. x की वैल्यू कितनी आ गई?
3.5। जैसे ही x आया बिल्कुल मजे से मेरे इसकी वैल्यू आ जाएगी 350। इसकी वैल्यू आ जाएगी 350 प्लस 50 400। और 400 का 1.5 टाइम्स कर लूं या फिर यहां पे वैल्यू रख के सॉल्व करूं, थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा। उससे बेहतर मैं अपने दिमाग में कैरी करता हूं ना इंफॉर्मेशन, क्या है कि शेक्स और जूसेस में क्या रिलेशन है कि जूसेस शेक्स का 1.5 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। नहीं विश्वास तो इसको सॉल्व कर लेना तो भी 600 आएगा। तो मेरे पास तीनों की वैल्यू है 600, 400 और 350। और एग्जैक्टली वन की वैल्यू है, एग्जैक्टली टू की वैल्यू है, एग्जैक्टली थ्री की वैल्यू है। बट मैं ए बी सी पी क्यू आर इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं बता सकता, मेरे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। एंड विद दैट इंफॉर्मेशन आई हैव मेड ऑप्टिमल यूसेज। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन और हाउ टू डील विद द सेट और द क्वेश्चंस आस्क्ड इन सच सिचुएशन। इंफॉर्मेशन में हम इंडिविजुअली वेरिएबल्स नहीं बता पा रहे, कैसे डील करना है। सो फॉर दैट लेट्स डिस्कस दिस पार्ट, देन वी विल बी डिस्कसिंग गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन। क्या ये अपना सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये अपना ओ होता था। और इसको क्या बोलते थे अपन, नन। थोड़ी देर के लिए नन को जीरो मान लेते। अगर मैं नन को जीरो मानूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ए यूनियन बी प्लस स्मॉल सी शुड बी इक्वल टू योर कैपिटल यू। कैपिटल यू मतलब वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज सैंपल स्पेस। क्योंकि या तो सेट ए के एलिमेंट्स है ये ब्लू है, या सेट बी के एलिमेंट्स है ये व्हाइट है, या फिर स्मॉल सी है। यही है पूरा का पूरा रीजन। और ए यूनियन बी को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी इज इक्वल टू कैपिटल यू। ये अपना कांस्टेंट है, फिक्स है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो रिलेशनशिप किस में बचा, सिर्फ इन दोनों में। तो मैं इन सबको अगर कांस्टेंट मान रहा हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस बी को, a प्लस बी यू माइनस ए प्लस बी जो भी आएगी वैल्यू, मैं उसको बोल देता हूं कि कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट आएगी तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a यूनियन b प्लस c इज इक्वल टू योर कांस्टेंट k। और आई कैन से कि c इज ऑलवेज इक्वल टू k प्लस a, सॉरी दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है ना, तो a इंटरसेक्शन b। और ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकता हूं मैं, सी इज इक्वल टू के प्लस पी प्लस ओ। अब देखिए आप, अगर सी इंक्रीज करेगा तो पी प्लस ओ भी बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स है ऑब्वियसली, क्योंकि सामने है। तो सी जितना इंक्रीज करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पी प्लस ओ पे। सी को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो पी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हेंस दिस इज द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। क्वेश्चन में वो बात करेंगे पी की और पूछेंगे सी, या फिर उल्टा बात करेंगे सी की और पूछेंगे पी। सिमिलरली बात करेंगे ए की और पूछेंगे क्यू, या फिर बात क्यू की हो रही होगी और तुमसे ए को मैक्सिमाइज करने बोला होगा, तो हमारा सारा फोकस किस पे होगा, क्यू को मैक्सिमाइज करने पे। क्यों, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि क्यू प्लस ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू प्लस ओ किसके प्रोपोर्शनल है, इस लाइन पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्यू, ए और ओ। ए के। आर प्लस ओ किसके प्रोपोर्शनल है, बी के। एंड पी प्लस ओ किसके प्रोपोर्शनल है, सी। ये हमें याद रखना है। अगर ओ कांस्टेंट हो गया तो सीधा क्यू का रिलेशन ए के साथ, आर का रिलेशन बी के साथ और पी का रिलेशन सी के साथ। पी का रिश्ता सी के साथ है, सी मैक्स तो पी मैक्स, सी मिनिमम तो पी मिनिमम, एंड वाइस वर्सा। ए मैक्स तो क्यू मैक्स, क्यू मिनिमम तो ए मिनिमम, ए मिनिमम तो क्यू मिनिमम, क्यू मैक्स तो ए मैक्स। क्लियर है। सिमिलरली अगर आर मैक्स तो बी मैक्स, बी मिनिमम तो आर मिनिमम, बी मैक्स तो आर मैक्स। मतलब इनका सीधा सीधा रिलेशनशिप है। हमने डेराइव भी कर लिया और डेरिवेशन को भूल जाओ, बस ये रिजल्ट याद रखो कि ये रिलेशनशिप तीन वाले वेन डायग्राम में होती है। क्या रिलेशनशिप होती है,
ऑपोजिट एलिमेंट्स की, कि एक लाइन ड्रॉ कर दें अगर हम, तो वो जो भी एलिमेंट्स उस लाइन पे आ रहे हैं उन सब में रिलेशनशिप होती है। और अगर ओ कांस्टेंट हो गया तो इनडायरेक्टली टू वाले की रिलेशन वन के साथ, वन की रिलेशन टू वाले के साथ, टू वाले की रिलेशन वन के साथ। क्लियर है? विद दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन मूव टू आवर क्वेश्चन एंड सी कि व्हाट दे हैव मेंशन। तो इंफॉर्मेशन क्या थी? ये अपने जूसेस थे और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 600। हमने सॉल्व की थी ना अभी, इसलिए मैंने याद करवाई थी। शेक्स की वैल्यू कितनी थी? 400। और जामुन शॉट्स की वैल्यू कितनी आई थी? जामुन शॉट्स की वैल्यू थी 350। ये अपना ए, ये अपना बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये ओ और ये नन। इसमें से ओ की वैल्यू मुझे पता थी, कितनी आई थी? 100। और मुझे एक और चीज पता है कि एग्जैक्टली वन, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 750 है। और एक और चीज पता है, एग्जैक्टली टू, जिसका मतलब होता है पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 300 है, सॉरी 150। बस इतना ही मुझे पता है। अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या दे रखा है? इफ 40 ordered both juices and shakes, juices and shakes but not jamun, मतलब they are talking about which region? This region। तो ये इसकी वैल्यू अगर 40 दे रखी है, तो मैंने क्या बोला, पी का रिलेशन किसके साथ है? सी के साथ। तो लेट्स सी, कहीं सी के बारे में तो नहीं पूछा। लेट्स सी देन हाउ मेनी ऑर्डर्ड ओनली जामुन शॉट्स। ओनली जामुन शॉट, जामुन किससे रिलेट हो रहा है? रेड सर्कल से। किससे डिनोट कर रहे हैं? रेड सर्कल से। तो ऑब्वियसली उन्होंने यही तो पूछा है। और ये तो हम बता सकते हैं। कैसे? कि पी अगर फिक्स कर दिया तो सी की वैल्यू फिक्स आएगी। अगर मैक्सिमम करने को बोलते तो ये भी मैक्सिमाइज हो जाता, पर अभी फिक्स दे दिया, फिक्स दे दिया तो आएगी। कैसे? पी की वैल्यू पता है और मुझे पी की इक्वेशन पता है। अगर मैं यहाँ 40 रख दूं तो क्यू प्लस आर कितना आ जाएगा? 110। और इसमें अगर मैं Q प्लस आर 110 रख दूं, तो क्या मुझे इस सर्कल की वैल्यू पता है? हाँ पता है, 350। 100 प्लस 110 कितना हो जाएगा? 210। 350 माइनस 210, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350 माइनस 210, विच कम्स आउट टू बी 140। कम्स आउट टू बी 140। तो डिटरमाइन कर पा रहे? क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 140। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया। हमें वैल्यू दे रखी थी पी की, इक्वेशन का यूज किया और डायग्राम में वैल्यू रख दी, और क्रॉस चेक किया तो मुझे सी की वैल्यू पता चल गई। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? ठीक है। और उससे मेरी वैल्यू आ गई। बट जैसी वैल्यू आई, ये वैल्यू सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है क्योंकि यहाँ पे इफ लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपने सॉल्व किया उसके बाद आप वैल्यू क्रॉस कर देंगे, और ये वैल्यू भी क्रॉस कर देंगे, और ये वैल्यू भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन के लिए थी। अगले क्वेश्चन में हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? ये एक चीज का ध्यान रखना होता है। तो हमने इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से बता दी। अगर नहीं समझ में आया, पॉज करो, रिकैप करो, स्लो स्पीड में प्ले करो, और देखो कि भाई किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन से हमने वो बना लिया जो हमें चाहिए था। आर और क्यू पता चल जाए तो सी पता चल जाएगा, एक ही अननोन बचेगा टोटल में से, और सी हमने निकाल ली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अगेन पहले वैल्यूज फिल कर लेते हैं। अपने जूसेस की वैल्यू कितनी थी? 600। शेक्स की वैल्यू कितनी थी? 400। और जामुन शॉट्स की वैल्यू कितनी थी? 350। ओ की वैल्यू कितनी थी? 100। पी नहीं पता था, क्यू नहीं पता था, आर नहीं पता था। अब ये मत कहना सर पी 40 दिया था, वो पिछले क्वेश्चन में दिया था, इसमें नहीं यूज कर सकते। ए बी सी एंड नन। नन ऑलरेडी जीरो दे रखा है। एटलीस्ट वन ड्रिंक बोला हुआ है इन्होंने। इफ 350 ऑर्डर्ड, इफ 350 ऑर्डर्ड ओनली जूसेस, ओनली जूसेस मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? इसकी वैल्यू 350 दे रखी है। अगर इसकी वैल्यू 350 दे रखी है, हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 750, जिसको हम एग्जैक्टली वन बोल रहे हैं इतनी देर से। और एक और इंफॉर्मेशन है p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 150।
जिसको हम एग्जैक्टली टू बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑर्डर्ड ओनली शेक्स एंड जामुन शॉट्स, शेक्स एंड जामुन शॉट और ओनली लगा दिया, मतलब किस रीजन की बात हो रही है इसकी। तो देखो ये दे रखा है और यही पूछा है, और हमें यही तो शक था, ए दिया है और क्यू पूछा और वही किया उन्होंने, और यही होता है जनरली, इसी तरीके से ये सिचुएशन चलती है। क्लियर है? कैसे सॉल्व करेंगे? पिछले में क्या किया था, इक्वेशन से वैल्यू निकाल के डायग्राम में रखी थी। अब उल्टा है, ओनली की दे रखी है और बोथ की पूछी है, तो डायग्राम से वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है, 600, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 350, तो आर प्लस पी कितना बचा, हमें पता है ए प्लस ओ प्लस आर प्लस पी इज इक्वल टू 600। ए की वैल्यू दे रखी है 300, सॉरी 350, कितनी दे रखी है 350, प्लस ओ की वैल्यू 100 प्लस आर प्लस पी, वही तो चाहिए, क्योंकि अगर मैं आर प्लस पी रख दूंगा तो मुझे क्यू मिल जाएगा। कितना दे रखा है 600, आर प्लस पी अपनी जगह पर रहने दीजिए, और 350 प्लस 100 450 हटा दीजिए, तो इसकी वैल्यू 150। अगर आर प्लस पी 150 है और आर प्लस पी 150 रख दिया, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 150 से 150 cancel, so Q comes out to be 0. So how many ordered only shakes and jamun shots? That comes out to be 0. That is equal to 0. तो कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई ट्रायल एंड एरर नहीं करना होता। मैक्सिमम केसेस में ऐसा लगता है ट्रायल एंड एरर होगा, नहीं, हम बहुत आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे अगर हमें ये रास्ते पता है तो। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट। अब मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूं और यहाँ पे भी टॉपिक मेंशन है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम बताया जाएगा, तो कैसे मैक्सिमम मिनिमम में कैसे काम आता है। तो पहली चीज तो ये समझना कि यहाँ पे वेन डायग्राम होगा। अब क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि कोई डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है, तो डीआई का सेट हो सकता है भाई, वेन डायग्राम भी हो सकता है उसमें, कैसे पता चलेगा, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिव्यूअर्स ऑफ एथलीट्स इन 5 एस्पेक्ट्स लाइक हाइट, वेट, बीएमआई, एज एंड विजन। इन 4-5 पैरामीटर्स पे लोग उनको जज कर रहे हैं, और कुछ लोग ही उसको क्वालिफाई करते हैं, है ना। हाइट के लिए कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, 12 लोग, वेट के लिए 16 लोग, बीएमआई के लिए 15, एज के लिए 22 और विजन के लिए 18। और अगर मैं टोटल एथलीट्स जिनको रिव्यू किया गया है वो तो 30 दे रखे हैं, पर इन दोनों का सम तो ऑलरेडी कितना होता है, इन दोनों का तो सम ही 40 हो रहा है, तो सम टोटल इंडिविजुअल का कितना हो रहा है, मेरे टोटल से ज्यादा हो रहा है। जब भी सम टोटल अपने गिवन टोटल से ज्यादा हो जाए, समझ जाओ ओवरलैपिंग है या सरप्लस इक्वेशन है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी, दिस इज सेट डी एंड दिस इज सेट ई। अब गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, हम इनको ऐड कर रहे हैं, और इनको ऐड करने पे तो ऑब्वियसली क्या मिलती है अपने को, सरप्लस इक्वेशन मिलती है। क्या होती है सरप्लस इक्वेशन, एग्जैक्टली वन एक बार, एग्जैक्टली टू दो बार, एग्जैक्टली थ्री तीन बार, एग्जैक्टली फोर चार बार, और एग्जैक्टली फाइव पांच बार, यही मिलती है अगर मैं सेट को। तो ऑब्वियसली उसमें तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये जो 30 दे रखा है ये तो सम टोटल दे रखा है, और सम टोटल का मतलब क्या होता है, ऑल द वैल्यूज टेकन ओनली वंस। दैट मीन्स ये क्या दे रखा है, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई। अब समझ में आया? तो भाई वेन डायग्राम लगेगा ना, ये सम टोटल अलग है और मैं जो सम कर रहा हूँ वो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा रिलेट्स टू सरप्लस, सरप्लस मतलब सरप्लस इक्वेशन, और सरप्लस इक्वेशन मतलब वेन डायग्राम। तो जैसे ही 4 5 6 होते हैं तो वहां पे हम डायग्राम नहीं बना, मतलब 4 में तो फिर भी बना लेते हैं, पर 5 6 7 जैसे अगर हो जाए कभी, तो हम उनका डायग्राम नहीं बना पाते जनरली। अगर डायग्राम नहीं बना पाते तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन पे रिलाई करेंगे। इक्वेशन जरूर हम ये वाली फॉर्म कर सकते हैं, और ये ही दोनों इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक तो सरप्लस इक्वेशन और दूसरी अपनी यूनियन, यूनियन वाली इक्वेशन। यूनियन मतलब सम टोटल ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स और ऑल दी एलिमेंट्स, और सरप्लस मतलब क्योंकि मैंने सारे सेट्स
ऑब्वियसली डायरेक्टली ऐड कर दिए तो ओवरलैपिंग वाले पार्ट्स एक्स्ट्रा टाइम से ऐड हो जाएंगे, जैसे 3 वाले में हुआ था। भूल गए हो तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो एंड देन कम बैक एंड वॉच दिस क्वेश्चन। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एग्जैक्टली 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 5 इज इक्वल टू 12 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 18। पर लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्या स्विमिंग के बारे में बात हो रही है या रनिंग के बारे में बात हो रही है? द नंबर ऑफ एथलीट्स हु क्वालिफाइड इन एग्जैक्टली 4 पैरामीटर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली 4 पैरामीटर्स, मतलब इसकी बात हो रही है। इन ऑल रनिंग इज एटमोस्ट, रनिंग में जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें एटमोस्ट मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। आ गया आपका मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो पहले इसका सम टोटल कर लेते हैं। रनिंग में कितना हो रहा है? 15 और 25 40 प्लस 21 इज 61 प्लस 29 इज 90 प्लस 16, 90 प्लस 16 इज 106। तो ये सम टोटल तो 106 पहुंच रहा है, बट मेरा टोटल कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4 प्लस एग्जैक्टली 5 कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। ये दो इक्वेशन है मेरे पास। उन्होंने क्या बोला? ये मैक्सिमम करना है। अगर ये मैक्सिमम करना है तो मैं सीधा क्या करूंगा? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये भी जीरो। ये जैसे ही जीरो करूंगा गिवन नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि ये सब जीरो। तो इक्वेशन सिर्फ क्या बचेगी? 4 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 4 इज इक्वल टू 106। तो एग्जैक्टली 4 कम्स आउट टू बी 20, कितना आ जाएगा? 26.5, 26.5। तो डेसिमल में नहीं हो सकते तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 26। बट क्या आंसर 26 हो सकता है? अगर मैं यहां 26 रख भी दूं और इन सबको जीरो कर भी दूं तो ये सम टोटल तो 40 वैसे भी नहीं पहुंच सकता। पहली प्रॉब्लम तो ये है। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो किसी को भी नहीं सेटिस्फाई करते होंगे, एक तो वो कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सा केस? नन वाला। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैं बोल रहा हूं इन सारे सेट में, मान लो मैं सेट ड्रॉ करूं तो मैं बोल रहा हूं सारे सेट का टोटल कितना है? एग्जैक्टली 4, मतलब यही वाली इक्वेशन एग्जैक्टली 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 26। मैं बोल रहा हूं दूसरी इक्वेशन का सम 26 हो रहा है। मतलब जब अपन सेट ड्रॉ करते हैं, जब अपन सेट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है? यूनियन होता है ना। और इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 26 आ रही है और इसमें से एक सेट की वैल्यू 29 दे रखी है। देखिए, एक सेट की वैल्यू क्या दे रखी है? 29 दे रखी है। तो क्या है ऐसा पॉसिबल है? मैं बोल रहा हूँ सारे एलिमेंट्स का सम 26 है और मैं बोल रहा हूँ उसमें से एक सेट में 29 एलिमेंट्स है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सोचिए जरा कि एक पर्टिकुलर सेट की वैल्यू तो 29 है बट उसके यूनियन की वैल्यू 26 है। मैं 3 वाला ड्रॉ कर लेता हूँ इसलिए बता दिया मैंने, यहाँ ड्रॉ कर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना यार, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई कि मेरी वैल्यू 26 आई पर एक सेट की वैल्यू उससे बड़ी है। और ये हमेशा गलती होती है कि हम इक्वेशन भी बना लेते हैं, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं और हम आंसर टिक कर देते हैं कि आंसर यही होगा और ऑप्शन में सबसे पहला होता है 26। पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन रेज हो रहा है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? कि मैं बोल रहा हूं यूनियन की वैल्यू 26, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो मैं बोल रहा हूँ यूनियन की वैल्यू 26 है। ओके, तो कुछ नन में लाई कर रहे होंगे, वैसे एडजस्ट हो गया, ठीक है, 40 में से। बट यहाँ पे इस इक्वेशन में बोल रहा है कि भाई इसकी वैल्यू 26 है और यूनियन की वैल्यू 26 है बट एक सेट की वैल्यू 29 है। तो कोई भी एक सेट की वैल्यू 29 कैसे हो सकती है जब यूनियन की टोटल वैल्यू 26 है? तो मैक्सिमम वैल्यू यूनियन की कितनी हो सकती है? 26 हो सकती है, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन फॉर यूनियन। ये यूनियन की इक्वेशन है ना। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, इससे बाहर कैसे आते हैं? कि हमसे कितना पूछा हुआ था? 4। तो अपन क्या करते हैं, जो ज्यादा आ रहा है उसको हटा दो सेट में से। मतलब अब मैं क्या करूंगा, टोटल मेरा कितना आ रहा है? 106। इसमें से मैं 29 हटा देता हूँ। अगर 29 हटाऊंगा तो सपोज 30 हटा देते तो 77 बचेगा। तो टोटल मेरा 77। और मैं कैलकुलेट किसके लिए कर रहा था? एग्जैक्टली 4 के लिए। तो अब मैं एग्जैक्टली 4 की जगह किसके लिए कैलकुलेट करूंगा? एग्जैक्टली 3 के लिए कैलकुलेट करूंगा।
मतलब अब मैं क्या लिखूंगा, एग्जैक्टली वन एक बार, ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली टू, थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली थ्री, एंड फोर टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली फोर इज इक्वल टू 77। क्योंकि ये जो 29 वाला सेट है, इसके पास तो सफिशिएंट एलिमेंट्स हैं भाई, 29 एलिमेंट्स है, मेरे मैक्सिमम ही 26 आ रहे थे। तो ये तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये पूरा यूनियन है और बाकी सब सेट इसके अंदर ही है, ऐसे मान सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब मैं अगर फिफ्थ सेट को ही एलिमिनेट कर दिया और सारे उसके अंदर है, तो मैं अगर एक फिफ्थ सेट है उसके ऊपर मैंने तीन सेट सुपर इम्पोज कर दी, तो पांच, मतलब एक सेट के ऊपर तीन और डाल दी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, चार। तो अभी तक मैं किससे एवरेज निकाल रहा था, किससे डिवाइड कर रहा था, फोर से। अब मैं किससे डिवाइड करूंगा, थ्री से, एक कम कर लेंगे। तो क्योंकि हमने एक सेट कम कर दिया, तो हम एग्जैक्टली फोर की जगह अब एग्जैक्टली थ्री को मैक्सिमाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम ही चार का रीजन बचा है। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि सारे के सारे सेट इसी के सबसेट रहे होंगे, इसी के ऊपर इम्पोज हुए। तो व्हाट वी विल डू, अब हम 77 को डिवाइड बाय थ्री कर देंगे, एंड 77 डिवाइडेड बाय थ्री गिव्स मी द वैल्यू एज टू, फाइव, 25 पॉइंट समथिंग, और इसकी वैल्यू 25। बाकी सब सेट में देखो क्या वैल्यू 25 हो सकती है, हाँ ये वैल्यू 25 के बराबर है, पर 25 से ज्यादा नहीं है। तो हाँ हो सकता है, यहाँ पे मैच कर सकता है ना। और बाकी बचे 15 एलिमेंट्स का क्या हुआ, टोटल तो 40 है, तो बाकी 15 एलिमेंट्स भाई नन में एडजस्ट हो गए, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट जब भी ऐसा आएगा, अब हमने सीखा क्या, जब भी फोर बोला है तो फोर से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, हमें ऐसा लगता है। पर आंसर आने के बाद आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, कहीं किसी सेट की वैल्यू उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर किसी भी सेट की वैल्यू उसके ऊपर जा रही है या उससे ज्यादा जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उस सेट को भी हटा दो। और चार के लिए निकाल रहे तो तीन के लिए निकालो, पांच के लिए निकाल रहे थे तो चार के लिए निकालो, तीन के लिए निकाल रहे थे तो अब दो के लिए निकालेंगे। तो डिवाइडेड बाय थ्री, और अब मेरी वैल्यू जो आई है वो इस रेंज को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि 15 उससे छोटा है। तो हाँ ऑब्वियसली यूनियन से छोटे सेट की वैल्यू हो सकती है, यूनियन के बराबर भी हो सकती है, पर यूनियन से बड़ी नहीं हो सकती। तो आंसर इज 25, एंड 25 will be your maximum number of people who qualified for four of the given parameters. Exactly four of the given parameters. 26 is not the answer. ये ध्यान रखना है। Got it? इस वीडियो को कम से कम दो तीन बार देखो, देन ऑब्वियसली ये जो पार्ट है समझ में आएगा। ठीक है। And for more maxima and minima questions, if you want more questions on the same topic, कि सर और questions चाहिए, please do let us know in the comment box कि सर और इस टाइप के questions करवा दीजिए और explain कर दीजिए। maxima minima उतना clear नहीं हुआ है, तो then we will be coming up with more such sessions. Otherwise, this is all about Venn diagram. We will be doing maxima and minima, but not as a sub part of Venn diagrams. अब हम नए और topics पढ़ने वाले हैं. So stay tuned for more such videos. एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो कि समझना बहुत मुश्किल होती है। तो आई थिंक, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट। ठीक है। और और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, या आपको एक और इससे वीडियो चाहिए सेम टॉपिक का, या सिर्फ इस टाइप की मैक्सिमम मिनिमा से डील करने का, सो प्लीज लेट अस नो इन दी कमेंट बॉक्स। विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। गुड बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।